Can you all see the page of workbook chapter 4 on your screen, all of you? Okay, now this page is already done. If anybody requires this, I want all of you to mute yourself, turn off your mics. Okay, this is the second page. This is also done. But if anybody requires it, take the screenshot again. This is the third page. This also we had done yesterday itself. If anybody had missed it, again take the screenshot. Shall I turn the page now? Okay, now listen. You have written match the following 1, 2, 3, 4. Okay, now next page again we have the question of match the following itself, where you will continue from number 5, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था. ओके, नंबर 4 वॉज पुलकेशी 2 डैश करके चालू किया, लिखा था हमने. नाउ वी विल राइट नंबर 5 नरसी वर्मा, 6 राजराजा 1, 7 पृथ्वीराज 3 and 8 गोविंद 3. And write the correct answers in front of the question. Narsi Varma, Pallav, Rajraja 1, Chola, Prithviraj 3, Chauhan, and Govind 3, Rashtrakoot. Am I very clear, all of you? Any doubts, beta? Okay, complete this thing. I will give you 5 minutes of time. All of you, have you completed the question? Okay, now you will leave 2 or 3 lines and give the title, main question number 5. Answer the following question in 1 or 2 sentences. You can see the title is also given. Okay, now listen very carefully. Question answers we are not doing now. अभी हम कर देंगे pause. ठीक है. Now I am going to give you the paper style of your unit test 1 and then we will start with revision. वैसे भी ये 4th चैप्टर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द UT1. ये तो हमारे पास टाइम था इसलिए वी स्टार्टेड, बट नाउ योर टेस्ट इज कमिंग नियरर, यूनिट टेस्ट 1. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द रिवीजन वर्क. ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ तक कर लिए, सब्जेक्टिव्स हम करेंगे UT1 के बाद. एम आई वेरी क्लियर, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ओके, पेपर स्टाइल यू कैन राइट एनीवेयर इन योर बुक. आप क्लास वर्क बुक के लास्ट पेज में लिख सकते हो, अपनी रफ बुक में लिखो, किसी पेज में लिखो. इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. ये कुछ मैं आपकी चेक करने वाली नहीं हूँ आपने कहाँ लिखा, कैसे लिखा. दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन. ओके, सो वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट द पेपर स्टाइल. आई विल गिव यू 1 minute ऑफ टाइम. कुछ लेना है, कुछ लेने जाना है तो ले लो फटाफट. एंड आई एम रिमूविंग दिस पेज. अभी ये पेज किसी को नहीं चाहिए ना? ओके फाइन, चलो. आई वॉन्ट ऑल द वीडियोज टू बी ऑन, otherwise I will remove you. Shall we start with the paper style? Ready all of you? Okay. Chalo, start writing. First of all, your paper is on 11th August as per your timetable. जो आपको पता है 40 marks and the chapters included are 1, 2 and 3. This is the basic information which is already there in your timetable. Okay? ये तो सबको पता है ना? Okay. Now comes your paper style. You will have 2 sections. First is your section A, which is of 20 marks. यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे. Section A, 20 marks. Under section A, first question is match the following. Half mark each. Total 4 marks.
Question 1. Match the following. Half mark each. Total 4 marks. Question 2. True or false. Again it is half mark each. Total 4 marks. Question 2. True or false. Half mark each. 4 marks. Have you written, all of you? Okay. Okay. Then comes your question 3. Blanks. मतलब पेपर में लिखा होगा fill in the blanks, state whether the following are true or false. अभी हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है? सिर्फ लिख लो blanks. 1 mark each. Total 7 marks. Question 3. Blanks. 1 mark each. Total 7 marks. Question 4. Identify me. Identify me. Again 1 mark each. Total 6 marks. Identify me. 1 mark each. Total 6. अब इसमें मैं क्या पूछ सकती हूँ कि I was a great ruler of North India. तो आप क्या नाम लिखोगे? Harshvardhan. Very good. I provide heat and light to the earth. तो आप क्या लिखोगे? Sun. Very good. ठीक है? I am the highest level in the government. Which level of government? Central government. Very good. Very good. तो आपको already पता है, बोलो. Right? So I will ask such questions. You have to identify. Based on the sentence, you will identify and you have to give the answer in one word itself. Okay? Yes, Janil? Okay. Now comes your section B. Next is your section B. जिसमें होगा subjective. उसमें first question will be give brief answers. 2 marks each. Total 10. Section B. Question 1. Give brief answers. 2 marks each. Total 10. And second question. Detailed answers. That is 3 marks each. And total 9 marks. Question 2. Give detailed answers. 3 marks each. Total 9. Okay. Now आपको listen. Let me finish. Now आपको क्वेश्चन हो गए कि मैडम इसमें शॉर्ट आंसर्स तो आए नहीं, इसमें शॉर्ट नोट्स तो आए नहीं, है ना? तो शॉर्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन जनरली होता है वर्कबुक में, आंसर इन 1 or 2 सेंटेंसेस. तो वो शॉर्ट आंसर्स में फिल इन द ब्लैंक से आइडेंटिफाई मी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, या 2 या 3 शॉर्ट आंसर्स कंबाइन करके मैं ब्रीफ या डिटेल में भी पूछ सकती हूँ. शॉर्ट नोट ऑल्सो आई कैन आस्क इन ब्रीफ आंसर या डिटेल्ड आंसर. सो यू शुड बी रेडी. ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन नहीं है तो मैं करना ही नहीं है, शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है ही नहीं तो हम लर्न ही नहीं करेंगे. नो, आई कैन कन्वर्ट एनीथिंग एंड आस्क यू. मतलब क्लास वर्क में हमने जो भी रिटर्न वर्क किया है, यू हैव टू थॉरली प्रिपेयर इट. आई कैन कन्वर्ट द फॉर्म्स. आइडेंटिफाई मी जैसा क्वेश्चन है ही नहीं, फिर भी मैंने अपने आप से बनाया है, तो ऐसे मैं कुछ भी बना सकती हूँ और ये बनाने में मुझे बहुत ही मजा आता है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्विस्टेड क्वेश्चंस ऑल्सो. Am I clear? Am I clear? Okay. Now, wait, beta. Let me complete. And if you want to ask, raise your hands. Don't disturb everybody.
ओके, नाउ आई एम रिपीटिंग द होल पेपर स्टाइल वंस. अगर किसी को बीच में कुछ रह गया है तो यू कैन चेक इट. बाद में आपको मैं चांस दूंगी बोलने के लिए. रेज हैंड करना, देन ओनली विल बी अलाउड. और वीडियोस जिसके ऑफ है उसका बाय बाय. ठीक है, चलो. यूनिट टेस्ट 1, date is 11th August. Chapters included are 1, 2, 3, total 40 marks. Section A will be objective, section B will be subjective. In section A, first question is match the following, half mark each, total 4. Second question is true or false, again half mark each, total 4 marks. Third is fill in the blanks, 1 mark each, total 7 marks. Fourth is identify me, 1 mark each, total 6 marks. Then we are going towards section B. Section B में first is brief answers, 2 marks each, total 10 marks. Second is detailed answers, 3 marks each, total 9 marks. So this makes your paper of 40 marks. अगर आप चाहो तो पूरा टोटल कर लो, 40 होना चाहिए. Okay, so this is the paper style. Now if you have any doubts, अगर आपको कुछ पूछना है तो raise your hands, I will ask you one by one. जिसका वीडियो ऑफ था उसको मैंने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, वीडियो ऑन वाले ही है. If you have any doubts related to paper style, raise your hand, I'll ask you one by one. चलो. Okay, now listen very carefully. Instructions related to the test. अभी ये चालू एग्जाम में मुझे कोई नहीं पूछेगा. हो सकता है कि सुपरवाइजर कोई और हो, मैं हो भी नहीं वहां पर. तो यू शुड बी क्लियर. सुपरवाइजर को आप डिस्टर्ब कर करके क्वेश्चंस नहीं पूछोगे. ओके, पेपर स्टाइल में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग कैसे लिखोगे आप? यस, वेरी गुड. 1A 2B 3C ऐसा नहीं लिखना है. कॉलम ए कॉलम बी करके लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है. राइट द क्वेश्चन, सिर्फ आंसर भी नहीं लिखना मैच द कॉलम्स में. सेक्शन पार्ट ए क्वेश्चन डैश करके आंसर, सेम एज वी हैव रिटन इन द क्लास वर्कबुक. ऐसे ही मैच द फॉलोइंग है तो मैं चेक करूंगी, अदरवाइज आई पुट अ क्रॉस एंड नो मार्क्स फॉर मैच. एम आई वेरी क्लियर? Okay. Which is the second question? Okay, true or false. इसमें आप डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हो. अभी पेपर स्टाइल के बाजू में नोट करके लिख लो आप, ताकि उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, उसमें डायरेक्ट लिख सकते हो. आइदर राइट ट्रू और राइट फॉल्स, या तो टिक मार्क करो या तो क्रॉस मार्क करो, योर विश. डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हो. विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Fill in the blanks. Fill in the blanks. Again, you can write answers. Don't copy whole of the sentence. It is not required. सीधा आंसर लिख लो, चलेगा. Okay. Which is the next question again? Identify me. Here also we will write only answer. It will be the answer of 1 or 2 words, maximum 3 words. जो भी है, write direct answers again. ठीक है? भव्या, any doubts बेटा? भव्या? Yes. Answer in brief. Answer in brief कितने मार्क्स का है? 1 each, 2 each. Now listen very carefully. खास ध्यान से सुनो. Answer in brief 2 marks and you are going to write this answer point wise. देखो, क्लास वर्क में हमने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, बट एग्जाम में यू हैव टू राइट इट पॉइंट वाइज कंपल्सरीली. अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 पॉइंट्स लिखोगे. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखोगे. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट्स लिखोगे. मतलब जितने भी मार्क्स है उसके डबल पॉइंट्स लिखोगे. हाँ, उससे 1-2 पॉइंट ज्यादा लिखना है तो यू कैन ऑलवेज राइट. अगर आपको लगेगा कि आपको ज्यादा आता है, अगर आपको लगता है कि बीच में एक आध आंसर रॉन्ग हो सकता है, समझ में आ रहा है, तो मिनिमम 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम आप 5-6 लिखना चाहो तो लिख सकते हो. बट पॉइंट वाइज जिसने भी पैराग्राफ फॉर्म में लिखा तो हाफ मार्क्स तो मैं रीड करने से पहले ही कट कर दूंगी.
बाद में रीड करके वॉट एवर मार्क्स यू गेट दैट विल बी गिवन. आई रिपीट, brief answers and detailed answers compulsorily to be written point wise. जितने भी मार्क्स है उसके डबल पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है. एंड लीव वन लाइन आफ्टर एवरी पॉइंट सो दैट योर वर्क लुक्स नीट एंड क्लीन. मैच द कॉलम है, ट्रू और फॉल्स है, ब्लैंक्स है, आइडेंटिफाई मी है, कुछ भी है, एक एक लाइन छोड़ दो. क्योंकि अब जब आप बड़े होंगे, आगे के स्टैंडर्ड सब में जाओगे तो वहां पर प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है. तो जो पेपर चेक करता है उसको रीड करने की इच्छा हो ऐसा प्रेजेंट करो, राइट. सो लीव वन लाइन आफ्टर एवरी क्वेश्चन. और जब मेन क्वेश्चन खत्म होता है तब 2-3-4 लाइन छोड़ दो, क्योंकि इसमें मुझे टोटल भी लिखना पड़ता है, मुझे भी स्पेस चाहिए मार्क्स लिखने के लिए. अब अगर मुझे आपने जगह ही नहीं दी मार्क्स लिखने के लिए तो मैं मार्क्स ही नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी, ठीक है. एंड इन ब्रीफ एंड डिटेल आंसर्स ऑल्सो विल राइट डायरेक्ट आंसर्स, उसमें भी क्वेश्चंस कॉपी करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर रिलेटेड टू योर UT1 पेपर. अब मुझे नहीं लगता कि अगर सुपरविजन में मैं नहीं भी हूं तो आप कहीं पर कंफ्यूज होंगे. अगर आपको कुछ भी पूछना है तो अभी हैंड रेस करके पूछ लो. यस कुंज. Pen. 7th standard you will write with pen.